होप आपको अब आवाज आ रही होगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए ठीक Yes, है, sir. Okay, sir. स्टार्ट करते Yes, हैं। sir. Okay. So, good morning, dear students. Let's start the new topic on unit second, that is a slope and deflection on beam due to the applied load which is acting on the vertically on the beam. Due to that load, there is some slope and deflection takes place in the beam structure. So, let's move to the topic. So you can see that there is a beam, a simply supported beam. When you apply a load here, so this kind of the beam will be deflect from its original position, where the middle dotted line, this which is mentioned, it is the neutral axis of the beam, and this blue color line on deflected beam, it is also the neutral axis of the beam. So the distance, vertical. So, dear students, so this is the vertical displacement from the previous neutral axis to the deflected beam neutral axis. So this is called the deflection. Okay. So this is a simple definition of the deflection. You can see the read out this. The deflection is a measure from the original neutral axis to the neutral axis of a deformed beam. So displacement by is defined, you know, so as a deflection of the beam. We can say the displacement is why it is called the of the beam. So dear student, it is the necessary to find out now before designing the beam. So our engineer take care of these things, slope, or how much slope and deflection will be takes place over the beam. So one condition is there. You can see that the maximum deflection of the beam, it must be less or equal to the length of the beam upon 300. So you can easily able to imagine that how less this deflection takes place over a beam. Okay, so hope you understood the deflection. Deflection means this y, the displacement from the previous neutral axis to the deflected beam or deformed beam neutral axis. And one more thing, that what is the slope? Slope means at the any time, at any point, this is called the elastic curve. In this elastic curve, at any point, suppose you want to find the slope here, so you just draw a tangential line from this point, at tangential line this point. So what the angle it's making from this tangential point, this is called the slope at that point. You can calculate the slope at any point you want here. So this is called the slope on that point. You want to slope here, you draw the tangential line, and what angle it's making, that is called slope. Anywhere you can find it. If it is, say, this is a maximum deflection is at the middle, so here slope will be zero. You can see that here slope is zero because it's become the parallel to that point. So at the where the maximum deflection takes place, at that place slope is zero. So hope you are you understood about the slope and deflection. This is called the elastic curve of the of deformed beam. So elastic beam theory, this is a very important which we are going to be discussed. So suppose, dear students, this is a beam structure, and if you apply a load here in this beam, it's try to be deformed in this way, in upward direction. If you applying load from upward to the downward, you can see the second one where you apply load. So if suppose this element, we are considering this element, and which is x distance from this support. So if it is tried to be deformed, so it is this element, sadded element, will make an angle. Just suppose this is a d theta angle, and the this radius of curvature of uh, uh, this radius of curvature of this element is
It is taken a row here, but we have taken here the its name is the R. What I have taken, but in diagram it's the row mention. Then I will send you. I will correct it. Okay. So see, dear students, imagine that you see this diagram. So before deformation, all the lines, this is the line, end line is this one line, and this is a neutral axis line. This is a filament we what we have taken, where we are going to be find the strain. So uh, it is all the line are parallel. You can see here before the deformation, and then after the deformation, it's look like this. If you are applying the load, so this element what we have taken here, this element, this one, this element, it will be looks like this after the deformation. So after the deformation, it's make the angle. This is the d theta angle, and this is a radius of curvature from here to here. This is r what I have taken in that problem. So this is r, and this is suppose we have assumed that the neutral length of the neutral axis, this over this element is dx, and length of the element where we are calculating the all the necessary thing, we have taken the length of its ds, and the length between the neutral axis, this is a neutral axis, and the taken element is y. ये हमने इसको for the getting the proper solution that assumptions we have taken. So अब अपन आगे देखते हैं, आगे आसान है बट आइए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए जरा। तो इस एलिमेंट ds वाला, ये देखिए जो y एक्सिस पे है, इस एलिमेंट पर स्ट्रेन निकालेंगे ds में। तो स्ट्रेन आपको पता है, आप पहले भी निकाल चुके हैं। स्ट्रेन क्या होगा, change in ds, this one, change in length of this element upon the original one. Okay, change upon original, ठीक है। So ds dash minus ds upon ds, this is means the strain in that element what we have taken, where we need to be calculate the strain. So ds dash, you see dear, ds that so एक चीज और अपन देखते हैं, सपोज दिस एंड दिस इज रेडियस ऑफ curvature line, this is a r we are assumed. So this is a total r, this is the एक सेकंड इसको। So dear, let's take annotation. Okay, this is our neutral axis. We all calculation will done from the neutral axis. So this is a r. So what will be ds dash? This angle is d theta. You can see that this is a d theta angle, and you know this r, and if you just minus this r minus this y, you will be reach here r minus y into d theta, r minus y into d theta। तो आप देखो कहाँ पहुंच गए, r minus by d theta and minus r d theta upon r d, and how you take it directly r d theta। आप देख सकते हैं, आपको एक बार बता भी चुका हूं मैं लास्ट प्रॉब्लम जब आपने फ्लेक्सुरल बेंडिंग इक्वेशन फाइंड आउट की थी। चलिए अपन देखते हैं वहां। सो ये देखिए, ये r में टोटल r में आप y माइनस करें तो r माइनस बाय डी थीटा फॉर डी एस डैश, एंड up now you have to be calculate the value of this original one ds, because this is a neutral axis, dx is the neutral axis, it won't be deform, वो deform नहीं होगी क्योंकि assumptions हमने लेके आया, मानते हैं कि there is no deformation in the neutral axis in previously,
you both are the parallel, so directly we can say, so what the deformation in neutral axis, it will be equal to the ds. Okay, so अब हम we can say, अब हम देख सकते हैं इसको, यहां से देखिए u, दिस इज r, दिस इज r, सो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इनिशियली क्योंकि ds एंड dx आर इक्वल, सो अब भी क्योंकि dx तो dx ही है, तो आप लिख सकते हो इस पोजीशन पे इक्वल टू और d थीटा, ये हो गई इसकी फाइनल कंडीशन। ठीक है, सो हम लिख दिया फाइनल इक्वेशन विल बी, कितनी हो गई, यहाँ आइए, तो r माइनस वाई डी थीटा माइनस आर डी थीटा अपॉन आर डी, यू जस्ट सॉल्व दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाय आर बस बचेगा, डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं 1 अपान आर इज इक्वल टू माइनस ई अपान वाई, माइनस ई अपान वाई। सो नेक्स्ट, तो अब देख सकते हैं द अप्लाई द हुक्स लॉ एंड फ्लेक्सरल फॉर्मूला वी ऑब्टेन। अब अपन देखिए जरा, यहां से आते हैं, गौर करिए क्या आया, 1 अपान आर इज इक्वल टू माइनस ई अपान वाई। ठीक है, सो ई अपान वाई आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला पहले से, देखो कौन सा, देखो क्या होता है, m अपान आई इज इक्वल टू, देखना जरा यहाँ, m अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई वाई आर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो जरा, हम इसको छोड़ो, हम इन दोनों को लास्ट को लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 1 अपान आर इज इक्वल टू एम अपान ई आई, ये यहां से आ गया। ठीक है, सो दिस रिलेशन वी हैव गॉट फ्रॉम द फ्लेक्सुरल बेंडिंग इक्वेशन। तो ये नया रिलेशन मिल गया आपको, 1 अपान आर इज इक्वल टू एम अपान ई आई। देन द मोमेंट ऑफ कर्वेचर इक्वेशन, ये मोमेंट ऑफ कर्वेचर इक्वेशन है, देन प्रोडक्ट ऑफ ई आई इज इक्वल टू एज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम। एंड आप जानते हैं dx इज इक्वल टू आर डी थीटा, जस्ट अभी निकाला था, तो dx इज इक्वल टू, dx क्या है, द लेंथ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ है, और वो r न्यूट्रल एक्सिस से लेके कर्वेचर की रेडियस इज r, एंड d थीटा दैट इज रेडियस ऑफ एंगल ऑफ कर्वेचर का एंगल है, तो वी कैन राइट इट dx इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, सो जो ये फॉर्मूला होता है डी थीटा, आई ऑलरेडी आपको पहले ही बोल दिया कि जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द स्लोप। तो यहां से जो आपको रिलेशन मिल जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू, ये वाला 1 अपान आर इधर चला जाएगा इस साइड में, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस डी थीटा इज इक्वल टू एम अपान ई आई डी एक्स, ये बेटा क्या है, स्लोप। अब आइए, अब थोड़ा सा, अब यहां से ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या किया, जो इलास्टिक कर्व था उसमें एक पॉइंट ले लिया, जो टेढ़ा वाला सा इलास्टिक कर्व, उसमें एक पॉइंट ले लिया BC, इस तरह से, ये इलास्टिक कर्व, और वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले से r लिया हुआ था, एंगल डी थीटा आपने लिया ही हुआ था, बस हमने क्या किया, एक एक्स वाई एक्सिस पैरेलल ड्रॉ कर ली, और इस रेडियस ऑफ कर्व, जब जो पॉइंट B था वहां से टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, और मान लिया वो एंगल थीटा बना रहा है, टैंजेंट, ये टैंजेंट ड्रॉ किया किस पॉइंट से, B पॉइंट से, और एक टैंजेंट C पॉइंट से, दोनों से टैंजेंट ड्रॉ कर लिया।
अब ये जो पॉइंट बी और सी है, यहाँ गौर से देखिए, ये पॉइंट बी और सी को इसको वर्टिकली और इसको हॉरिजॉन्टली मिलाया, तो ये जो ये साइड में जो डायग्राम बना है ये वहां से बन गया। और हमको बी सी, ये इसका लेंथ को हमने, ऑब्वियसली वो बहुत छोटा है, दिस इज स्मॉलेस्ट लेंथ, डीएल बहुत छोटा है, तो जब कोई बहुत छोटा होता है ना तो वहाँ कर्व भी लीनियर जैसे दिखता है, तो हम इसको मान सकते हैं कि डीएल इज ए लीनियर। तो हमको एक से ट्राइंगल मिल जाएगा, और दोनों साइड के जो डिस्प्लेसमेंट है, एक को dx और एक को dy हमने मान लिया। तो इस ट्राइंगल में जिसका एंगल, यहां से देखिए ये वाला एंगल, ये अगर मैं बी वाले की बात करूं, गौर से देखना, बी वाले यहाँ बी, ये देखो बी वाले की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, तो ये वाला बी, ये और ये वाला, इसको उठाया और इसको यहाँ लेके आए, और ये एंगल है थीटा पहले से, तुम क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ से देखो जरा, अगर ये एंगल थीटा है, इस कर्व के पैरेलल अगर तुम यहाँ लाइन खींचोगे तो ये भी थीटा ही होगा, ये चीज आपने पढ़ा लिखा है पहले से, सो दिस विल बी ए थीटा। अब इसमें देख लो, इस ट्राइंगल में डी टेन, इस ट्राइंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू होगा डी वाई अपान डी एक्स, इस ट्राइंगल्स की हेल्प से, ठीक है, ये सब डी है, डी, ठीक है, सो डी वाई अपान डी एक्स, तो इस तरह से ये डी वाई अपान डी एक्स हो गया। अब क्या करना है इसको, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा एंड डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा। एंड अब देखिए जरा गौर से, सेक स्क्वायर थीटा को आप यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। सो ये यहाँ ये इसमें देखिए इसको वैल्यू रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि टेन की वैल्यू रख दी ना यहाँ से, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 से, गौर से देखो यहाँ की वैल्यू रख दी, तो ये टेन से हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो 4 है, यहाँ ये वाला जहाँ डी थीटा है, अब क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ना, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये देखो गौर से देखो, इसमें इस वाले में ये हम आ गए। अब आपको पहले से ही पता है, यहाँ देखो से इक्वेशन नंबर 3 में, अब इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू 4 देखो जरा, इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू ले जाके रख दो डी, यहाँ से सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहले से ये, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ये वैल्यू जब रखोगे, ये वाली देखो जरा, कहाँ गया मेरा एनोटेशन, ये यहाँ देखिए, ये टेन, ये वाली वैल्यू हम यहाँ ले जाके रख देंगे इसकी जगह पे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, तो यू विल गेट दैट डी थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ जो आया डी थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू ये देखो, यहाँ पूरी वैल्यू और यहाँ से आओ, इससे कि स्क्वायर थीटा बराबर में ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। सो ये वाली इक्वेशन बन गई आपकी नई इक्वेशन, डी थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। आपकी जो इक्वेशन नंबर 4 है, अब बस लास्ट है इसका, इसको कैसे आगे मूव कराएंगे। तो देखिए जरा इक्वेशन नंबर 4 जो है, ठीक है, गौर से देखिए, अब चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इट्स वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन, आपको पहले ही बता दिया है कि डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, इट इज लेस और इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बीम डिवाइड बाय 300, तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, और इसका स्क्वायर कर मारो आप तो वो और छोटी हो जाएगी, तो अब क्या करोगे, हम उस क्वांटिटी को निगलेक्ट कर दिया, नीचे वाली को, ये देखो इसको निगलेक्ट किया, तो ये वाला टर्म हो गया 0 और यहाँ 1 है, तो ये अब हो जाएगा m अपान ई आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स एंड डी एक्स, तो ये डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू ई आई
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। ये आपको याद रखनी है, बहुत काम की इक्वेशन है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द बीम m इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट m अपॉन ई आई भी लिखते हैं, डी डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन आई, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस बीम की डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।